मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on quadratic equations that have appeared in IPMAT examination in previous years. Start करते हैं session को, and if you're not already subscribed to the session, so make sure to subscribe to the session. Also, subscribe to the channel. Also, press the bell icon. And you can also message me on Telegram at ADIDYAKT and join the WhatsApp channel as well. So description में link मिल जाएगा. तो पहला question करता हूँ. Let fx is equal to a square x square plus 2bx plus c, where a is not equal to 0 and b and c are real numbers and x is a real variable. Then which of the following is true? Whether fx will be having a maximum, or it will be having a minimum, or it will be having both, or it will be having none of these. Okay, so fx is equal to a square x square plus 2bx plus c, where obviously a is not equal to 0. Okay, so this is a very easy question, because in general अगर हमें किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है that ax square plus bx plus c. Okay, if this is our quadratic equation ax square plus bx plus c, in that case there are two cases. या तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ दैट इज पॉजिटिव, इफ a is greater than 0, then graph of the function is like this. That is the upwards parabola. ठीक है, upwards parabola. And if leading coefficient is negative, then it is a downwards parabola. If it is a upwards parabola, so in upwards parabola there is a minimum that is existing, minima. क्योंकि x तो x इज एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, x पे कोई लिमिट तो है नहीं. सो इन दैट केस एक मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और फिर मैक्सिमम वैल्यू का तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा. इन बोथ केसेस दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी. ओके, एंड इन केस व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट इज लेस देन 0, एक मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू. तो ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे जाके टक से वापस चला जाएगा. सो इन दैट केस एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर अगेन. सो हमारा मिनिमम क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम विल बी एग्जिस्टिंग. और जब a ग्रेटर देन 0 है तब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. सो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, सो लीडिंग कोफिशिएंट इज a स्क्वायर दिस टाइम. a स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि a तो 0 है नहीं. सो a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और a स्क्वायर पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. एंड फॉर दिस ग्राफ देयर विल बी लोकल, देयर विल बी मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. सो मिनिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा, सो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. आंसर होगा एफ एक्स एज अ मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम, ऑप्शन बी. ओके, अगर यहीं पे हमारा एक्स लेटर से कंस्ट्रेंड होता बिटवीन टू नंबर्स, नंबर्स होते हैं मान लो हमारे ई एंड एफ, ठीक है. सो इन दैट केस हम कहते हैं कि हाँ, फिर हमारा मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि या तो मैक्सिमम ई पे होता है या फिर एफ पे होता है. ठीक है, अगर ऐसा होता तो, पर वैसा है नहीं इस क्वेश्चन में. दैट इज वाई एफ एक्स एज अ मिनिमम बट नॉट अ मैक्सिमम. Next one. If the harmonic mean of the roots of the equation 5 plus root 2 times x square minus bx plus 8 plus 2 root 5 is equal to 0 is 4, then value b क्या होगा? तो harmonic mean of the roots, if roots of this equation are, let us say, alpha and beta, so alpha plus beta, sum of the roots क्या हो जाएगा? That will be minus coefficient of x divided by coefficient of x square minus b by a. So that will be equal to minus of minus b upon 5 plus root 2. Okay, this is equal to b upon 5 plus root 2, and alpha into beta will be equal to constant of term divided by a. So that will equal to 8 plus 2 root 5 upon 5 plus root 2. And harmonic mean of the roots is 4. Harmonic mean 4 है, and harmonic mean is equal to, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 4. सो 2 से कैंसिल आउट हुआ, अल्फा बीटा बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू 2. वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 5, तो 8 प्लस 2 रूट 5 upon 5 plus root 2 divided by b upon 5 plus root 2, this is equal to 2. 5 plus root 2 gets cancelled out, so this becomes effectively 8 plus 2 root 5 is equal to 2b, and hence b is equal to 4 plus root 5.
तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, बस वैल्यूज पुट अप करनी थी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 4 + √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of real solutions of the equation x square minus 15x plus 55 to the power x square minus 5x plus 6 is equal to 1. Okay, number of real solutions कितने होंगे? So this is somewhat like a to the power n is equal to 1. Okay, a to the power n is equal to 1. तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, कभी भी ऐसा इक्वेशन हो तो हमेशा 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी इफ पार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा a इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर एंड n इज इक्वल टू 0, तो अगर पावर 0 है तो हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है, सो अगर पावर इज इक्वल टू 0 देन रिजल्ट विल इक्वल टू 1, बिकॉज देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा a टू द पावर 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो a कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, a कैन बी एनी वैल्यू। बस हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मोस्टली केसेस में नहीं होगा, पर ध्यान जरूर रखना है कि a शुड नॉट बी 0, क्योंकि 0 टू द पावर 0 फिर अनडिफाइंड हो जाएगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। सो a शुड नॉट बी 0। ओके, जो मोस्ट केसेस में नहीं होगा, बट फिर भी एक बार ये दिमाग में जरूर रखना है कि 0 टू द पावर 0 विल नॉट बी इक्वल टू 1। सो वहाँ पे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, सेकंड केस वुड बी व्हेन जो बेस है हमारा दैट इज इक्वल टू 1। अगर बेस इक्वल टू 1 है, बिकॉज 1 टू द पावर एनी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो बेस इक्वल टू 1 कर दो, यानी a इक्वल टू 1 कर दो, और फिर n हमारा कैन बी एनी रियल नंबर। तो n पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस a इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट इज सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो इज व्हेन बेस इज इक्वल टू -1। सो -1 टू द पावर इवन इंटीजर, -1 टू द पावर इवन इंटीजर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यानी कि इस थर्ड केस में कंस्ट्रेंट क्या होगा, दैट a इज इक्वल टू -1 एंड n इज अ इवन इंटीजर। ओके, तो तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस, when power is equal to 0, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. This is equal to 0. So this becomes x minus 2 into x minus 3. This is equal to 0. So either x is equal to 2 और x is equal to 3. अब टेस्ट कर सकते हो, x equal to 2 पुट करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट नॉन जीरो रहेगा, जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, और x equal to 3 पुट करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट नॉन जीरो रहेगा, 9 - 45। हाँ, तो ये भी तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा। सो बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, 2 and 3। ओके, सेकेंड केस। अच्छा देखो, जैसे हम जब 2 पुट कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 55, तो 55 एक ऑड वैल्यू है, एक्स स्क्वायर इवन आएगा, 15x इवन आएगा, तो इवन माइनस इवन प्लस ऑड, यानी अल्टीमेटली रिजल्ट ऑड आएगा। तो वैसे भी अगर कोई लार्जर वैल्यू भी होता तो भी टेस्ट करने के लिए हमें पता था कि जीरो तो नहीं आ सकता, कुछ भी वैल्यू आएगा, बट जीरो आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्स एक इवन नंबर है और हमारा रिजल्ट जो है वो ऑड आएगा, और ऑड है तो जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, 1 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1। सो यानी कि हमें बेस को 1 करना है, तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 55 दिस इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट हमारा 55 है, सम 15 आ रहा है, सो नंबर्स होंगे 9 और 6। तो x - 6 इंटू x - 9 दिस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 6 और x विल बी इक्वल टू 9। 6 and 9 देयर आर टू सॉल्यूशंस। थर्ड केस, क्योंकि सेकंड केस में कुछ भी और टेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, कोई नंबर हो, कोई रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड केस में बेस शुड बी इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 55 दिस इज इक्वल टू -1। सो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आएगा 56, सम आएगा 15, 7 and 8, तो x - 7 इंटू x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x शुड बी इक्वल टू 7 और 8। अब इस केस में टेस्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यूज पे हमें इंटीजर मिल रहा है, इवन इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो पावर है हमारा। ठीक है, पावर शुड बी इवन इंटीजर। ओके, ठीक है, सो हमारा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो x इंटू एक्स - 5 प्लस 6 इज द पावर। ओके, x इंटू एक्स - 5 क्या है, इफ x इज ऑड, क्योंकि इंटीजर तो मिलेगा ही हर एक केस में, बिकॉज हमारा जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो भी इंटीजर है, बाकी वैल्यूज भी। x को इंटीजर पुट करोगे, x - 5 भी इंटीजर होगा, सो इंटीजर तो आएगा, इवन आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। सो इफ x इज ऑड फॉर एग्जाम्पल, तो x - 5 इन दैट केस विल बी इवन, ऑड इंटू इवन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 तो इवन ही है अपने आप में।
तो यानी कि रिजल्ट हमारा इवन आएगा। ठीक है, चेक करके चेक वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, पर इतनी बात समझ लो कि जस्ट इन केस अगर मान लो एक्स हमारा इक्वल टू 37 आता, 94 आता, लार्जर वैल्यू आता, तो क्या चेक करना पड़ता? क्योंकि हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि दैट शुड बी इवन इंटीजर, इतना ही तो देखना है। ठीक है, सो इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस 5 इवन होगा। अगर एक्स हमारा इवन हुआ तो एक्स माइनस 5 ऑड होगा। और फिर ऐड तो इवन ही कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट हमारा इवन ही आएगा। सो एज लॉन्ग एज एक्स इज अ इंटीजर, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी अ इवन इंटीजर। तो यस, बोथ वैल्यूज विल बी सेटिस्फाइंग, यानी कि 2 and 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 6 and 9 भी सेटिस्फाई करेगा, 7 and 8 भी सेटिस्फाई करेगा। So total 6 values are possible. Number of real solutions will be equal to 6. Answer will be 6 in total. Okay. क्या ये clear है? ठीक है. Next question. If 8x square minus 2kx plus k is equal to 0 is a quadratic equation in x such that one of its roots is p times the other and p and k are positive real numbers, then what is the value of k? ठीक है. So equation हमारा है 8x square minus 2kx plus k is equal to 0. And this is a equation such that one of the roots is p times the other. So if we assume that one root is alpha, तो other root will be b times of alpha, p alpha हो जाएगा. सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वहां से हम फिर अल्फा की वैल्यू में इक्वेशन बना देंगे. ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस पी अल्फा, यानी p प्लस 1 टाइम्स अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो माइनस b बाई ए, सो 2k माइनस और माइनस 2k यानी कि 2k अपॉन 8, तो k अपॉन 4. ओके. सेकेंड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू पी अल्फा, which will be p alpha square, and this is equal to c by k upon 8. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन से हम अल्फा का वैल्यू निकाल के सेकंड में प्लेस कर देते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा अल्फा मिल जाएगा k अपॉन 4 टाइम्स p प्लस 1. नाउ पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन है p अल्फा स्क्वायर, तो p इंटू अल्फा स्क्वायर, तो p इंटू k स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू p प्लस 1 स्क्वायर. दिस इज अल्फा स्क्वायर. p इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 8. ओके, क्योंकि इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 8p इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर. अब 8 से काटा पीटी कर दो, बच गया 2. तो p इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू के 2k इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर. अब चाहो तो k को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें एक बात तो क्लियरली दिख रही है कि k जो हमारा है क्या है, k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, k जीरो तो नहीं है. और अगर k जीरो नहीं है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वेशन है हमारा, तो कैंसिल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, k को कैंसिल आउट कर सकते हो. अदरवाइज क्या होगा कि इक्वेशन अपनी पूरी फॉर्म करोगे, एंड में k कॉमन आएगा, तो यू कैन से दैट यस, क्योंकि कॉमन आने के बाद में रिजल्ट हमारा इक्वल टू जीरो होगा, तो कह सकते हैं कि सिंस k इज पॉजिटिव तो k तो जीरो नहीं होगा, तो यानी कि बाकी बचाओ पोर्शन हमारा जीरो होगा. तो कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पे, k की पावर जितना कैंसिल हो रहा हो, तो एक साइड में हमारा k का पावर k टू द पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा. सो सब कुछ एक साइड में लेके आ जाओगे, k कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल इक्वेशन विल बी इफेक्टिवली, k कॉमन आने के बाद में इक्वेशन हमारा बनेगा पी के minus 2 into p plus 1 whole square, and this is equal to 0. Now since k is not equal to 0, so this part must be equal to 0. Okay, so we can say that pk is equal to 2 into p plus 1 whole square, and hence k will be equal to 2 into p plus 1 whole square upon p. बट ऐसा तो कहीं पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी या सी में से आंसर है. ऑब्वियसली सी दिख रहा है आंसर शक्ल से, बट अभी एग्जैक्टली वहां तक पहुंचे नहीं है. ठीक है, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी कैन राइट दिस एज 2 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन पी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ पी होल स्क्वायर. ठीक है, अब इस पार्ट को देख लो, तो पी प्लस 1 को रूट पी से डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी पी बाई रूट पी, यानी कि रूट पी प्लस 1 अपॉन रूट पी होल स्क्वायर. तो k is equal to 2 times of root p plus 1 upon root p whole squared. This will be our answer. Option B answer हो जाएगा. Is this clear?
ठीक है, एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है, क्लियर है? ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि हम ऑप्शंस को यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, हालांकि ये मेथड भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी मेथड ही है। बट सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि हम ये सोच सकते हैं कि चलो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक रूट है हमारा दैट इज पी टाइम्स द अदर। ठीक है, सो हम मान सकते हैं कि लेट अस से फर्स्ट रूट हमारा या सेकंड रूट हमारा इज टू टाइम्स द फर्स्ट रूट। ठीक है, तो एज्यूम कर सकते हैं वैल्यू 2 मान लो, वैल्यू 3 मान लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। बट वैल्यू ऐसी मानने की कोशिश करना जिससे कि सारे के सारे जो ऑप्शन है हमारे, इफ पॉसिबल तो वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अगर डिफरेंट नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमें ज्यादा वैल्यूज पुट करना पड़ेगा एक से। तो अगर हमने पी इजिकल टू माना तो वहाँ पे भी पता है सारे ऑप्शन हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आएगा पी इजिकल टू मानने पे 2 + 1/2 5/2, सेकंड आएगा 5/2 इंटू 2 यानी 5, थर्ड आएगा 2 इंटू √2 + 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट आएगा √2 + 1/√2 होल स्क्वायर। यानी सारे सारे ऑप्शन हमारे डिफरेंट आने वाले। ठीक है, ओके, यानी कि ठीक है, तुमने एज्यूम कर लिया कि पी इजिकल टू, यानी कि एक रूट हमारा डबल दैट ऑफ सेकंड रूट होगा, तो रूट्स हमारे अल्फा इंटू अल्फा हो जाएंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 3 अल्फा विल बी इक्वल टू 2k/8 यानी k/4। अल्फा कम्स आउट इक्वल टू k/12। सेकंड इक्वेशन 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k/8, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारा k/16। So अल्फा इज इक्वल k/12, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा k/12 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k/16। सो k स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू k/16। सो k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब p की वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा था हमारा 5/2, सेकंड वॉज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, तो आंसर नहीं है। ऑप्शन सी आ रहा था 2 इंटू √2 + 1/√2 होल स्क्वायर, विच विल बी इफेक्टिवली √2 इंटू √2 यानी 2 + 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 2, एंड हेंस यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी डिफरेंट आ रहा है क्लियरली, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/2। ओके, ऑप्शन सी विल बी आर आंसर। जब भी वैल्यू पुट करो तो एक बार ये जरूर देखना कि सारे के सारे ऑप्शन डिस्टिंक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट इन केस अगर मान लो सीओडी सेम आ जाते हैं हमारे, तुमने वैल्यू पुट किया तब ध्यान नहीं दिया, दो ऑप्शन सेम आ गए, तो फिर एक डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखो, जहां पे कि बस वो दोनों ऑप्शंस में चेक करना है। तुम्हें ये तो पता है कि ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, अगर सी और डी सेम आ रहे हैं तो अब जो तुम वैल्यू पुट करोगे तुम्हें उसके लिए सी और डी की वैल्यू डिस्टिंक्ट चाहिए बस। ठीक है, तो बस ये है कि दूसरा वैल्यू तुम्हें पुट करना पड़ेगा। अगर ये बात तुमने पहले से नहीं देखा है तो पहले देख लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोसेस आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट this expression is equal to 0, let p0 is equal to 2 and p1 plus p2 plus p3 that is equal to 14, then p4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट p0 इंटू p2 माइनस p0 इंटू p1 इज इक्वल टू 0, p0 इंटू p2 माइनस p0 इंटू p1 दिस इज इक्वल टू 0। तो p0 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू p0 इंटू p2 माइनस p1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन कह रहा है कि p0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, p0 इज इक्वल टू 2, तो p0 इज डेफिनेटली सिंस इक्वल टू 2 है नॉट इक्वल टू 0, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि p2 माइनस p1 इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर श्योर, एंड दिस इंप्लाइज दैट p2 इज इक्वल टू p1। तो p1 एंड p2 दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल। ओके, सो इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अब एडिशनली पता है कि p1 प्लस p2 प्लस c3 दैट इज इक्वल टू 14। अब px हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस से px इज इक्वल टू, लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो put x equal to 0, so p0 will be equal to a into 0 plus b into 0 plus c, so p0 is equal to c and this is equal to 2, and hence px will be equal to ax square plus bx plus 2। अब यूज करते हैं कि p2 is equal to p1, these are equal। okay, so p2 is equal to p1, so p1 will be equal to a into 1 plus b into 1 plus 2, so a plus b plus 2, p1 is equal to p2, so a plus b plus 2 will be equal to p2 which is 2 square into a यानी 4a plus 2b plus 2, so 2 gets cancelled out और 4a minus a is 3a minus b is equal to 3a और b इज इक्वल टू -3। तो इसको पुट करेंगे, हमारा px और वैल्यू करेक्ट आके आ जाएगा, दैट px विल बी इक्वल टू
ax square and b is equal to minus 3ax plus 2. So this is our px. Okay. Now we'll be solving this equation p1 plus p2 plus p3 is equal to 14. इसको सॉल्व करके हमें a और b के वैल्यूज में एक वैल्यू मतलब a का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि a के अननोन बच गया हमारा. ठीक है. सो p1 plus p2 plus p3, p1 will be equal to a minus 3a plus 2, so minus 2a plus 2. p2 क्या आएगा? p2 ऑलरेडी इक्वल टू p1 है तो p2 will be equal to minus 2a plus 2. And p3, this will be equal to a into 3 square यानी 9a माइनस 9a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ही बच जाएगा. p3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ओके. p1 is minus 2a plus 2, p2 is minus 2a plus 2 and p3 is equal to 2. Now put this in our equation p1 plus p2 plus p3 is equal to 14. So with this we'll be getting minus 2a plus 2 times plus 2, this is equal to 14. So minus 4a plus 6 is equal to 14. So minus 4a is equal to 14 minus 6 यानी कि 8. So a is equal to minus 2. a is equal to minus 2 आ गया. And if a is equal to minus 2 तो b will be equal to minus 3 है यानी कि b will be equal to 6. c तो 2 था ही है. ठीक है. a minus 2 है, b 6 है. So px finally will be equal to minus 2x square plus 6x plus 2. And hence p4 will be equal to minus 2 into 4 square plus 6 into 4 plus 2. So minus 32 plus 24 यानी कि minus 8 plus 2 minus 6. p4 will be equal to minus 6. Option C will be the answer. Okay. क्या है? क्लियर है? ठीक है. आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 6. अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग अपनी इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं. ठीक है. बाकी ये क्वेश्चन परफेक्ट है, सॉल्यूशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा और समझेंगे तो हमेशा आसान होगा. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. एंड या फिर मतलब दिस ऐसा ग्राफ होगा जबकि ए इज ग्रेटर देन 0. जब ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, बट ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला. ओके. चाहे ए ग्रेटर देन 0 हो या फिर ए लेस देन 0. तो ग्राफ हमारा इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अराउंड अ पॉइंट. ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अराउंड अ पॉइंट. अब उस पॉइंट पे अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. इफ ए इज लेस देन 0 तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा. बट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अराउंड दैट पॉइंट. उसके अराउंड ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल होगा. उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो या राइट हैंड साइड में देखो, ग्राफ विल ऑलवेज इज सिमेट्रिकल. ठीक है. एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. ठीक है. अब अगर उसमें x से हम लेटेस्ट से x को x1 लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं या x1 राइट हैंड साइड में जाएं, so values will be exactly same. These values, let us say this is y1 and this is y2, so these will always be equal. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमारा x इक्वल टू क्या है? माइनस बी बाई 2 है, जहाँ पे कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है. सो इन दैट केस इफ वी आर गोइंग x1 on the left hand side or x1 on the right hand side, so values will be equal in both cases, y1 and y2. These two will be equal. ठीक है. So y1 will be equal to y2 in both cases. So we can use this property also of quadratic polynomial. ठीक है. कैसे यूज़ करेंगे? देखो हमें इस क्वेश्चन में जैसे मेंशन है कि जैसे ही हमने रिजल्ट देखा स्टार्ट में तो हमें मिल गया था कि p1 इज इक्वल टू p2. सो इफ p1 इज इक्वल टू p2 इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो दैट डेफिनेटली इम्प्लाइज कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ अगर p1 p2 इक्वल आ रहे हैं, सो बिटवीन 1 and 2 जो पॉइंट होगा एग्जैक्टली बिटवीन, उसके अराउंड ग्राफ सिमेट्रिकल होगा. तभी तो p1 p2 इक्वल आएंगे. इजंट इट सो? ठीक है. सो दैट इम्प्लाइज कि 1 प्लस 2 बाई 2 यानी कि x इज इक्वल टू 1.5 is equal to minus b by 2, and graph will be symmetrical around x equal to 1.5. क्या अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ? ठीक है. p1 इक्वल टू p2 तो आ ही गया, बट एडिशनली में ये भी पता चल गया p0 विल ऑल्सो भी इक्वल टू p3.
क्योंकि P0 इज 1.5 लेस फ्रॉम x इक्वल 1.5 एंड P3 इज 1.5 मोर, तो P0 एंड P3 भी इक्वल होंगे. ओके, नाउ P1 एंड P2 आर इक्वल, लेट अस से कि दोज आर इक्वल टू K, और P0 P3 इक्वल है तो P3 विल बी इक्वल टू 2. सो पुट इन दिस इक्वेशन, so इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2K plus 2 is equal to 14, so K comes out to be equal to 6. यानी P1 and P2 are equal to 6 and P0 and P3 are equal to 2. अब पॉलिनोमियल अपनी एज्यूम करते हैं कि Px is equal to ax square plus bx plus c. P0 को 2 पुट करते ही हमें c इक्वल टू 2 मिल जाएगा, सो Px हमारा इक्वल टू हो जाएगा P0 पुट करने के बाद में ax square plus bx plus 2. नाउ P3 is also equal to 2 and P1 is equal to 6. तो P1 is equal to 6 से हमें इक्वेशन मिलेगा a plus b plus 2, this is equal to 6, तो a plus b equal to 4 आ गया. And P3, this is equal to 2 and P3 will be equal to 3 square and 9a plus 3b plus 2 is equal to 2. 9a plus 3b is equal to 0. So b is equal to minus 3. Put in this equation. So b is equal to minus 3 put करते ही हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, a minus 3 is equal to 4. So a is equal to minus 2 and hence b is equal to 6. So px will be equal to minus 2x square plus 6x plus 2 and hence p4 will be equal to minus 32 plus 24 plus 2 and hence minus 6. Okay, option C will be the answer. Okay, क्या क्लियर है? ठीक है, तो दिस कैन बी अनदर अप्रोच. थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बाकी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हमने ग्राफ की प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया. ठीक है, सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिक. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव जो भी डिस्कस किए क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे. किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, एंड ऑल्सो गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस सेशन. ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड you can always message me on Telegram at ADITYKD. That is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.